And Jai Hind everyone, today we will learn about retirement. Retirement means any partner is retiring from the firm. It can be by his own will or compulsory retirement. Whenever the retirement take place, there will be so many changes in the partnership, and the very first is profit sharing ratio. There will be a change in profit sharing ratio. We will learn about this with the help of the question. The question is on your screen. There are two cases only, and both the cases are covered in this question. First of all, we will solve the first case, that is A, that Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:5:4. Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari. So according to this, old ratio between Shiv, Mohan and Hari is 5:5:4, and Mohan is going to retire. Shiv and Hari will take his share equally. So first of all, we will solve that share of Mohan taken by शिव. तो शिव उसके शेयर का कितना ले रहे हैं? 5/14 इंटू, तो उसका शेयर जो था मोहन का, दैट वाज 5/14. तो हाफ ले रहे हैं शिव, तो इंटू 1/2, it will be 5/28. In the same way, share of Mohan taken by Hari. तो 5/14 का 1/2 जो है वो लेगा हरी. तो सेम आंसर फिर से आएगा 5/28. अब इसका फॉर्मूला क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो निकलेगा ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर. या फिर आप कह सकते हो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड. तो इस तरीके से जो शिव का शेयर बनेगा वो होगा, शिव का शेयर बनेगा 5/14 उसका ओल्ड शेयर था शिव का, उसमें प्लस कर देंगे जो उसने एक्वायर किया उसने 5/28. इट मीन्स इट विल बी 10 + 5/28 मीन्स 15/28. ये आ जाएगा शिव का जो है न्यू शेयर. ऐसे निकालेंगे. सेम तरीके से हमने निकालना है हरी का. हरी का जो ओल्ड शेयर था वो था 4/14 प्लस एक्वायर्ड, दैट इज 5/28. it will be equal to 8/5/28 means 13/28. So the answer is new profit sharing ratio between Hari and Shiv will be 15:13. So this is how it is calculated if it is given that one or remaining partner are taking the share of retiring partner in this specific ratio.
if specific ratio is given, that in this ratio that old partner, remaining partner are taking share of retiring partner. This is how we will calculate in that case. And if we look upon the second case, that is part B, that PQR are our partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. P retires from the firm. If we look at this case, there are three partners, old partners, P, Q and R, and their ratio is given, that is 5:4:1, and P is going to retire. And as we can see, no information is given as to how Q and R are acquired P's profit share after his retirement. So the new profit sharing ratio between Q and R is calculated just by crossing out P's share, that is new profit sharing ratio. अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि जो रिटायर होने वाला पार्टनर है वो तो रिटायर हो रहा है, हमें पता है कि P रिटायर हो रहा है, हमें बाकी नहीं पता कि Q और R जो है इसके शेयर को किस रेशो में लेंगे. अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जो इस पार्टनर है जो जा रहा है उसका शेयर आप क्रॉस कर दो, और जो बच गया वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है Q और R की, that will be 4:1. So this is how we will calculate profit sharing ratio in case of retirement. So the next is gaining ratio. By the way, why is gaining ratio calculated? It is simply calculated to compensate the retiring partner. So there will be two cases in gaining ratio also. The very first case is very much similar to this one. As we can see that no information was given in this case when P, Q, R were partners and P was retiring. Except this, no information was given. In this case, we calculated the new profit sharing ratio by crossing the P share. The remaining partners and the remaining ratio will be the new profit sharing ratio among Q and R. And this is how it will be calculated in case of gaining ratio. If no information is given in the question, we will take this one as a gaining ratio. तो जो यही है वही हमारी gaining ratio होगी अगर कोई भी information नहीं given है. So this is the first case. The question is on your screen that X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. Calculate the gaining ratio of remaining partner when Y retires from the firm. तो हमने क्या करना है, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है. ओल्ड रेशियो हमें गिवन है. ओल्ड रेशियो इज equal to X, Y and Z 1/2 is to 3/10 is to 1/5. First of all, we are supposed to take the LCM. We will take LCM, that will be 10 and 5:3:2. So this is the old ratio, 5:3:2. New ratio, now we are supposed to calculate new ratio after Y's retirement. So gaining ratio इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड.
ओल्ड शेयर या फिर ओल्ड रेशो, आप कुछ भी कह लो। तो न्यू रेशो आफ्टर वाइज रिटायरमेंट क्या होगी? मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया ना, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, हमने जस्ट उसका शेयर जो है क्रॉस कर दिया था। सेम इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो वाई का शेयर जो है हम ये वाला, इसे हम क्रॉस कर देंगे, तो बचेगा क्या? 5:2। तो न्यू रेशो जो थी वो है 5:2। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो या फिर ओल्ड शेयर, इसको आप न्यू शेयर भी बोल सकते हो। तो हम देखेंगे अब एक्स को कितना गेन हुआ। एक्स की जो न्यू रेशो है दैट इज 5/7, और उसका जो ओल्ड शेयर था दैट इज 5/10। ये आ जाएगा हमारे पास 70, 15/70। In same way, gains ratio, Z's gain, that will be old share first, that is 2/7, new share 2/7 minus old, that was 2/10. It will become 70 and 6. So the gaining ratio is 15:6, और आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, दैट विल बी 5:2। तो देखा आपने, जैसे यहाँ पे 5:2 गेनिंग रेशो है, यहाँ पे भी सेम है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपने करना क्या है, आपने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को क्रॉस कर देना, और जो पार्टनर बच जाएंगे वही उनकी गेनिंग रेशो है। अब हम करते हैं इसका सेकंड केस। अब जो नेक्स्ट केस है वो नेक्स्ट केस आपकी स्क्रीन पे है, दैट ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 4:3:2. C retires from the business. A is acquiring 4/9 of C share and balance is acquired by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ए, बी और सी की हमें गिवन है 4:3:2, और सी का शेयर जो था वो था 2/C शेयर, सो 2/9। अब जो ए है वो एक्वायर कर रहा है, ए एक्वायर्स 4/9 ऑफ सी शेयर। तो ए ने क्या किया, सी के शेयर का 4/9 जो है वो एक्वायर कर रहा है। तो शेयर एक्वायर्ड बाय ए हम निकालेंगे पहले, बाय ए। तो वो कैसे निकालेंगे हम, सी का शेयर लिखेंगे पहले 2/9 इंटू जितना वो एक्वायर कर रहा है दैट इज 4/9, वो आ जाएगा हमारे पास 81 and 8/81। अब जो कह रहे हैं कि रिमेनिंग जो शेयर है वो कौन एक्वायर करेगा, बी एक्वायर करेगा, तो वो भी निकालेंगे। अब शेयर एक्वायर्ड बाय बी, वो कैसे निकालेंगे हम, सी का जो शेयर है जो उसने ले लिया माइनस करेंगे एक्वायर्ड जो किया है ए ने, तो सी का शेयर था 2/9, उसमें से माइनस करेंगे जो इसने एक्वायर कर लिया ये 2/81, इट विल बिकम
10/81। तो ऐसे हमने दोनों का एक्वायर निकाल लिया। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, जैसे हमने इसका निकाला था वैसे ही आप बी का भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ था वर्ड, अगर बैलेंस की जगह पे स्पेसिफिक आपको रेशियो दी हुई है कि जैसे 4/2/9 का 1/3 बी ले रहा है, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे हमने ए का कैलकुलेट किया था। क्योंकि इसमें बैलेंस लिखा था तो हमने क्या किया, सी का जो शेयर एक्वायर किया है सी ने, सी के शेयर से ए ने, वो हमने माइनस किया था। अदरवाइज ये सेम ऐसे ही दोनों केसेस में कैलकुलेट होना था। उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयर है वो हमें पता है कैसे निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयर जो होगा वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर यानी ओल्ड रेशो प्लस जो शेयर एक्वायर किया है वो। अब निकालेंगे ए का न्यू पहले। (4/9) प्लस 8/81, यानी उसका खुद का शेयर जो था पहले 4/9 था, उसमें हमने प्लस किया जो उसने एक्वायर किया 8/81। इट विल बिकम 36 प्लस 8/81 44/81। उसके बाद बी का न्यू निकालेंगे, वो भी सेम तरीके से निकलेगा। उसका ओल्ड शेयर जो है 3/9 प्लस जो उसने एक्वायर किया दैट वाज 10/81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस 10/81 मीन्स 37/81। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो आ गई दोनों में, दोनों पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो आ गई है दोनों पार्टनर्स में जो हमारे पास बचे थे ए एंड बी। 44:37। अब हम निकालेंगे गेनिंग। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमने जब सैक्रिफाइसिंग रेशो पढ़ा था तब हमने करा था ओल्ड रेशो माइनस न्यू। गेनिंग में उल्टा होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का गेन निकालेंगे पहले, एज गेन वो कैसे आएगा, उसकी न्यू रेशो हो गई है 44/81 माइनस न्यू रेशो जो थी उसकी दैट वाज 4/9। इट विल बिकम 44 माइनस 36/81 इक्वल टू 8/81। सेम तरीके से हम निकालेंगे बी का गेन। बीज गेन इज इक्वल टू उसकी ओल्ड 37/81 माइनस ओल्ड दैट वाज 3/9। 37 minus 27/81 is equal to 10/81। हमारे पास जो गेनिंग रेशो आ गई है उसकी वो आ रही है हमारे पास 8:10 गेनिंग। इट इज़ टू 10। अगर हमने इसे वो शॉर्ट करना है तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बन जाएगी शॉर्ट करके 4:5। ठीक है जी।
तो ये है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। दिस इज़ फॉर द डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद।